اس کے نام کو جلال دیا جائے. اس کی بھیڑیں جو یہاں پر موجود ہیں وہ مبارک ہیں. جو لوگ یہاں پر آ چکے ہیں خداوند نے ان کو گھیر کر اپنا ایک سسٹم چلایا ہے کہ وہ خداوند کے گھر میں پہنچی ہیں. اور آپ اپنے آپ کو مبارک سمجھیں. اپنے لیے زوردار تالیاں بجا دیں. اگر آپ کو کوئی موتی دیا جائے آپ اس کو ریسیو کریں گے؟ ایک خالص موتی ہوتا ہے نا, سچا موتی, اگر آپ کو دیا جائے تو کیا آپ اس کو ریسیو کریں گے؟ کریں گے. اگر آپ کو وہ موتی بار بار دیے جائیں اور آپ کو کہیں گے ایک ہار بنائیں تو کیا آپ بنائیں گے اس کو؟ تب جب آپ کے اندر اس کو بنانے کا پیشن ہوگا. آپ اس کو ریسیو تب کریں گے جب آپ کے اندر یہ خواہش ہوگی کہ یہ موتی مجھے مل جائے. تو کلام موتیوں سے بھرا ہوا ہے. ہم ہر سیٹرڈے سنڈے جو بھی دن خداوند ہمیں عبادت کے لیے دیتے ہیں ہم خداوند کی حضور پرستش کرتے ہیں اور خداوند ہمیں بلیس کرتا ہے. پھر آگے چل کر ہم دعا میں چلے جاتے ہیں اور خداوند ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. کئی بار ہم یہاں پر آ کے گواہی دیتے ہیں کہ خداوند تیرا شکر ہے, ہمارا یہ کام کیا تو نے, تیرا شکر. ہم شکر گزاریوں سے بھرے کرتے ہیں. ہاللیلویا. یہ سیزن لینڈ سیزن, روزوں کا, بہار کا, سپرنگ کا, اس میں خداوند آپ سب کو ایک آج موتی دینا چاہتا ہے. ہاللیلویا. ریسیو کرنے کے لیے رائٹ ہینڈ کو بڑھائیے. ہاللیلویا. کیونکہ یہ جو کچھ بھی میں ابھی بول رہی ہوں یہ ابھی اس چیئر پہ بیٹھے ہوئے یہ سب چیزیں خدا نے مجھے دی ہیں. ہاللیلویا. اور جب خداوند دیتا ہے تو کوئی بھی چیز چھپ نہیں سکتی, وہ آرام سے بیٹھ نہیں سکتی, وہ بتا دینی چاہیے کہ آج خداوند آپ کو آپ کے ہاتھ میں ایک موتی دینا چاہتا ہے, اس کو آپ نے ریسیو کرنا ہے. ہاللیلویا. آپ اپنے رائٹ ہینڈ کو گھمائیے کیونکہ آپ کی قوت آپ کے اندر ہے. خداوند آپ کی قوت اگر بن جائے تو یہ ڈبل ہو جائے گی. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. جب روزوں کا سیزن ہے, روزوں کا مہینہ ہے, تو ہمیں اسٹڈی بھی بائبل سے روزوں کے متعلق کرنی چاہیے تاکہ ہم فریش نہیں ریفریش ہوتے چلے جائیں. ہاللیلویا. روزہ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں کلام بہت ساری جگہوں میں بتاتا ہے. بہت ساری جگہوں میں روزے کا ذکر ہے. آج میرے ساتھ خداوند نے جو کلام مجھے دیا ہے وہ یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 58 باب ہے. اس کی شکر گزاری ہے کہ ہم اس کے کلام کو پڑھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں. اور یہ ویلیویبل بات ہے کہ اگر آپ کے پاس کلام ہے اور اگر آپ کلام کو پڑھ سکتے ہیں اس کی گہری باتوں کو تو یہ جانیے کہ آپ بہت ہی لکی ہیں. ہاللیلویا. خداوند کے کلام میں لکھا ہے یسایہ نبی کا صحیفہ, گلا پھاڑ کر چلا دریغ نہ کر, نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر, اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر. اور روز بروز میرے طالب ہیں اور اس قوم کی مانند جس نے صداقت کے کام اور اپنے خدا کے احکام کو ترک نہ کیا. کیا میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں, وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں. ہاللیلویا. اور آگے ایک ورڈز ہے, اور کہتے ہیں کہ ہم نے کس لیے روزے رکھے, بلکہ تو نظر نہیں کرتا, اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال نہیں کرتا. خداوند کے کلام میں جو لکھا ہے وہ غور کرنے والی بات ہے. ہم نے آج سیکھنا ہے روزے کے متعلق. جب ہمیں اس ورڈ کا پتہ نہیں تو ہم روزہ رکھ بھی نہیں سکتے. جب ہمیں روزے کی تعریف کا, اس کے میننگز کا نہیں پتا تو ہم اس کی ڈیپتھ میں کیسے جا سکتے ہیں. خداوند کے کلام میں اس کی ڈیفینیشن
اس کے مقاصد، اس کی برکتیں، سب کچھ بیان ہے۔ میں اکثر آپ سے کہتی ہوں کہ سوال کہیں سے بھی ہو، جواب بائبل ہی دے گی آپ کو، اور یہ بہت خوبصورت کتاب ہے۔ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کی گہرائیوں کا پتہ چلتا ہے۔ ہاللیلویا۔ روزہ، روزہ کی تعریف، وہ عمل جس میں کوئی روزہ دار اپنی جان، اپنی روح، اپنے جسم کی خاطر محدود مدت کے لیے ارادتاً کھانا پینا چھوڑ کر خداوند کی طرف رجوع لاتا ہے، اسے روزہ کہتے ہیں۔ کیا اس میں عمل ہے؟ ہماری جان، ہماری روح اور ہمارا جسم، یہ تینوں ارادتاً ہم اپنی مرضی سے، ہماری مرضی جب شامل ہو، ہماری خوشی جب شامل ہو، تو ہمارا جو رشتہ ہے وہ خداوند کی طرف جڑے اور ہم اس میں رجوع لائیں اپنی مرضی سے، کسی کے بھی دباؤ میں یا کسی طرح کے کوئی ڈپریشن میں نہیں۔ بس جب ہم اپنی پوری باڈی، اپنی روح اور اپنے جسم کو خداوند کے ساتھ جوڑیں اور رجوع لائیں، اور پراپر ہم نے کھانا پینا ہی چھوڑا ہو اور ہمارا پورا جو دھیان ہے وہ خداوند کی طرف ہو۔ ایک یہ روزہ کی تعریف ہے۔ دوسری تعریف ہے روزہ کی رضا کرانا، اپنی خوشی سے، اپنے طور سے۔ جب خدا کا رشتہ اور ہمارا رشتہ، خدا کی محبت اور روزے دار کی حالت اور خداوند سے شگانگت اور اس میں بڑھتے ہوئے حالت کو روزہ کہتے ہیں۔ یہ ریلیشن جسم کا روح اور روح کا روح سے ہے، اور یہ 40 روزے جو کہ ہمیں بتائے جاتے ہیں، اور لینٹ کا سیزن ہے، اس کو لینٹ سیزن کہتے ہیں۔ ان دنوں کو روزوں کے ایام کہتے ہیں۔ یہ کفارہ ہے، قربانی ہے، چیزوں کو چھوڑنا ہے، اور یہ ہمارے لیے بہار کا موسم بھی ہے۔ جب بہار آتی ہے تو نئی کونپلیں آتی ہیں، نئے پودے نکلتے ہیں، شادابی آ جاتی ہے، ہریالی آ جاتی ہے، اور اس سیزن میں خداوند ہمیں وہ جو پتے پرانے جھڑ جاتے ہیں اور پھر نئی کونپلیں آتی ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ جب یہ روزوں کے ایام آتے ہیں تو ہماری پرانی انسانیت، ہماری گناہ، ہماری جو کمزوریاں ہیں، جو ہمارے اندر جو بھی گناہ ہیں، وہ جھڑ جانے چاہیے اور نئی کونپلیں آ جانی چاہیے، نئے پودے بن جانے چاہیے، اور ایک خوشبو آ جانی چاہیے۔ پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو سب نئی ہو گئیں، اور ہمیں اس طرح اپنے آپ کو خداوند کے رشتے میں ڈھالنے کا موقع ملتا ہے۔ جب روزوں کے ایام آتے ہیں تو ہمیں اوقات کی سمجھ نہیں آتی، وقت کی سمجھ نہیں آتی کہ کس ٹائم پہ روزہ رکھا جائے۔ تو کلام خداوند نے روزوں کے ایام کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اخبار کی بک میں، سیموئیل کی بک میں، آستر اور سیموئیل کے اور بھی ابواب میں۔ خدا کا روزہ، آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون کون سے ٹائمنگز ہیں جس میں روزہ رکھا جائے یا رکھا گیا بائبل میں۔ خدا کا روزہ جو خداوند ہمیں کہتے ہیں، اخبار کی کتاب 23 باب اور 21 سے 32 تک، وہاں پہ خداوند نے بتایا ہے کہ شام سے شام تک۔ آگے بنی اسرائیل جب روزہ رکھتے تھے تو ان کی ٹائمنگز کیا تھی؟ غالباً صبح سے شام۔ اگر آپ نے اس کی اور بھی اسٹڈی کرنی ہے تو دوسرا سیموئیل اور اس کا 7 باب اور اس کی 12 آیت کو کمپلیٹ بنی اسرائیل کے روزے کو بیان کیا گیا ہے۔ آستر کو آپ جانتے ہیں، کوئین ایسٹر، اس نے بھی روزہ رکھا، اور اس کی بک میں بتایا گیا ہے آستر کے 4 باب اور اس کی 15 سے 16 آیت تک کہ آستر نے 3 دن کا روزہ رکھا۔ آپ داؤد نبی کو آپ جانتے ہیں، داؤد نے 7 دن کا روزہ رکھا۔ دوسرا سلاطین، سیموئیل 12 باب، یہ سب حوالے ہمیں بتاتے ہیں کہ کن کن نبیوں نے روزے رکھے اور کن کن دنوں میں اور ٹائمنگز میں رکھے۔ موسیٰ نے بھی روزہ رکھا، موسیٰ نبی لیڈر، موسیٰ
मूसा ने बड़े होकर वो तमाम चीजें छोड़ दी। वो एक शहजादी के पास परवरिश पाया गया था और मूसा ने बड़े होकर उन सब चीजों को तर्क किया। कब बड़े होकर? जब उसे पता चल गया कि खुदावन की नजदीकी मेरे लिए कितनी जरूरी है। उसने फरौन की बेटी का घर छोड़ दिया। हमें कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं, तर्क करनी पड़ती हैं, ताकि हम बड़े हो सकें, हम अच्छे हो सकें, हम वो चीजें छोड़ दें जो खुदावन कलाम में से चाहता है कि हम उन्हें तर्क कर दें। खरूज 34 बाब और उसकी 28 आयत में लिखा है कि मूसा ने 40 दिन का रोजा रखा और खुदावन की गहरी उसने नजदीकी पाई। हालेलुया। और एलिया नबी ने भी 40 दिन का रोजा रखा। एक सलातीन और उसका 19 बाब और 28 आयत में आप अगर स्टडी करें तो वहां पे लिखा है कि एलिया नबी ने 40 दिन का रोजा रखा और खुदावन की नजदीकी पाई। ये वो लोग हैं जिन्होंने रोजा रखकर खुदावन से नजदीकी हासिल की है और इनका अपने एंड में देखा कि खुदावन ने इनको कितना चाहा है, कितनी इज्जत बख्शी है, कितना मुकाम उनका ऊंचा हो गया है। और यीशु मसीह ने खुद 40 दिन का रोजा रखा है। मत्ती 4 बाब उसकी 2 आयत को स्टडी करें तो वहां पर यीशु मसीह ने 40 दिन का रोजा रखा है। और कितना सुकून और पूरा अमन कलाम हमें इन चीजों के बारे में सिखाता चला जा रहा है। हमारे रोजे होते हैं रस्मी और कुछ हकीकी रोजे भी होते हैं। रस्मी रोजों में आजकल हम बहुत ज्यादा खाना बना लेते हैं, लोगों को बुला लेते हैं और हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। ये रस्मी है, ये बुरी बात नहीं, लेकिन ये रस्मी रोजा इसको कहा जाता है, जिसमें आप शख्सी तौर पर खुदावन से नहीं लेकिन आप दिखावे के लिए इसको करते हैं। जिक्रिया 7 बाब और उसकी 1 से 7 आप स्टडी करें तो इस रस्मी रोजे के मुतालिक आपको मिलेगा कि रोजा एक हकीकी रोजा है और एक रस्मी रोजा है। अगर आप हकीकी रोजे के बारे में जानना चाहें तो अहबार की किताब और उसका 23 बाब उसकी 26 से 32 आयत कोई भी अगर निकाल सकता है, उसको स्टडी के लिए वो पढ़ भी सकता है। आए निकालें अहबार 23 बाब उसकी 26 से 32 आयत, क्योंकि हमें हकीकी रोजे के बारे में जानना है कि हकीकतन रोजा है क्या। जो हम सीख रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, वो एक्चुअली क्या सिखाना चाह रहा है आज खुदावंद आपको, और उसकी गहरी और मीठी आवाज आप तक जब पहुंच रही है तो आपने किस तरह अपने आप को रोजे के लिए तैयार करना है। और अखबार की बात हमें सिखाती है, बताती है कि हकीकी रोजा क्या है। ये रोजे का दिन है और ये कफारा का दिन है, गुनाहों की माफी का दिन है, और ये अजीजो रूहानी मामला है, ये रूहों का मामला है। ये खुदावंद का अपने लोगों की रूहों के साथ जो कनेक्ट हो जाता है, ये वो रोजा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद हमें सिखाता जाता है और हम सीखते चले जाते हैं, क्योंकि खुदावंद हमारी जिंदगी में मकसद भी चाहता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मकसद हो रोजा रखने के, कई दफा हम सोचते हैं कि हमारा क्या मकसद है, हम किस लिए रोजा रखें। अब उस मकसद को जानने की जरूरत है। हमारे माइंड में क्या है, हमारे दिल में क्या है, हमने रोजा किस मकसद के लिए रखना है। हमने सीख लिया कि खाना पीना सब कुछ बंद कर देना है, खुदा की तरफ रजू लाना है, घुटने टेक दिए, अब आंसू बहा रहे हैं हम और खुदावंद के तालिब हो रहे हैं, लेकिन हमारा उसके बीच में मकसद क्या है। जब हम दुआ कर रहे हैं, उसके सामने झुक रहे हैं, तो हमारा उस खुदावंद के साथ जब बातचीत हो रही है तो हमारा मकसद क्या है, हमने क्या मकसद रखा है उसके आगे कि खुदावंद ये इस मकसद के लिए मैंने रोजा रखा है, आज मेरी इस दुआ को सुन, ये मैं तेरे सामने तरतीब रख रही हूँ खुदावंद, ये देख मेरा ये मकसद है। तो हमें उस मकसद के बारे में गहरा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यशाया 58 बाब और उसकी 1 से 2 आयत में लिखा है, खुदावंद यहाँ पर अपने अहकाम तलब करता है। हमारा पहला मकसद कि रोजा रखा जाता है तो क्या हासिल होता है, क्या हमें करना है, ये खुदा के अहकाम तलब करने के लिए भी है।
جب موسیٰ پہاڑ پر گیا تو خدا کے احکام طلب کرنے کے لیے گیا. ہاللیلویا. دانیل 9 باب اور اس کی 1 سے 3 آیت میں روزے کے متعلق ہے کہ وہ ایسے قوانین و احکام وہ دینا چاہتا ہے کہ اس کا مقصد ہے خدا کی قربت اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے. جب ہم دنیا میں ہیں ہمارا کنیکشن نہیں ہو رہا اور اس وقت یہ جو موتی ہے روزہ اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لائیں گے؟ خدا کی نزدیکی پانے کے لیے ہم روزہ رکھیں گے. پہلا خدا کے احکام کو طلب کرنے کے لیے کہ خدا کیا چاہتا ہے. پھر اس کے بعد خدا کی نزدیکی جانے کے لیے کہ خدا ہمارے قریب ہو. اگر ہم روزے کی کنڈیشن میں ہیں تو خدا آپ کے نزدیک ہو جائے گا. ہاللیلویا. یشعیا 58:2 میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں. خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں. خدا اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اگر ہم کسی سے بات نہیں کرتے ہیں تو ہماری طرف متوجہ نہیں ہوگا. اور خداوند سے بات کریں گے وہ تبھی ہماری طرف متوجہ ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں, ہماری زندگی کا سفر آسان ہو جائے, ہم چاہتے ہیں کہ خداوند ہماری زندگی میں ٹھہرے, تو روزے کی ایسی کنڈیشن ہے جو خداوند کو آپ کی طرف ٹریکٹ کر دے گی. یہ بیسکس موتی ہیں جو آپ کو آج اچیو کرنی ہیں اپنی دعا کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے. اگر آپ 1 دن دعا کرتے ہیں, 2 دن دعا کرتے ہیں, 3 دن دعا کرتے ہیں, آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی, یو شٹ ڈاؤن, آپ روزے میں ٹھہر جائیں. یہ وہ روزے کی وہ کنڈیشن ہوگی, آپ کی دعا پاورفل ہو جائے گی. ہاللیلویا. اپنی دعاؤں کو پاورفل کرنے کے لیے ہمیں روزے کی کنڈیشن میں جھکنا ہی پڑے گا. یسعیا 58 اس کی 4 آیت میں ہے کہ وہ اپنی دعاؤں کو اس خداوند کی طرف رجوع لانے کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں, خداوند کو راضی کرنے کے لیے. اگر ہمارا باپ ہم سے راضی نہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے آگے پیچھے پھریں گے, اس کے حکموں کو یاد کریں گے. پاپا کو یہ بات پسند ہے, میں یہ کام کرتی ہوں. پاپا کو یہ بات نا پسند ہے, یہ میں نہیں کروں گی. اور ہم اپنی آپ کو چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں خداوند کو راضی کرنے کے لیے. نینوا نے بڑا کمپیٹیٹو ہو کر خداوند کو راضی کر لیا تھا. اس شہر کے لیے کیا تھا کہ اس کو مٹا دیا جائے گا, لیکن نینوا شہر کی ایکٹیویٹی آپ جانتے ہیں کہ وہ رات پر بیٹھ کے روزے کی کنڈیشن میں وہ آ چکے تھے اور انہوں نے اپنے خداوند کو راضی کیا تھا. اس نے اپنے خداوند کا غصہ ٹھنڈا کر دیا تھا. ان کی طرف جو بڑی ہوئی خداوند کی جو ہے تھی کہ ان کو میں نے آج ختم کر دینا ہے, انہوں نے اس کو روک دیا تھا. وہ کون سی طاقت تھی؟ وہ روزے کی حالت تھی, وہ روزے کی کنڈیشن تھی. بادشاہ سے لے کر ایک چھوٹے جانور تک کو روزہ رکھوایا گیا تھا. انہیں پتا نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, لیکن جب ان تک پہنچا یونا اور اس نے منادی کی اور روزے کے بارے میں بتایا تو انہوں نے اس کی بات کو جھٹلایا نہیں. کتنے وہ لکی تھے کہ خداوند کے بندے نے جب منادی کی, حالانکہ اس سے پہلے نینوا شہر کی بجائے وہ ترسیس میں چلا گیا اور خداوند نے اس کو پھر بھی مچھلی میں سے نکالا اور پھر اس کو سمندر میں پھینکا اور پھر وہ نینوا شہر میں پہنچا. کئی دفعہ خادمین بھی نہیں وہاں پہ پہنچ کی ہمت رکھتے کہ ہم وہاں پر کیسے جائیں. وہاں پہ بت پرستی ہے, وہاں پہ مارے جائیں گے, وہاں پہ جلائے جائیں گے, زنجیروں میں جکڑے جائیں گے, شاید جیل میں ڈالا جائے. لیکن خداوند کا ایک کام تھا کہ وہ روزہ رکھ کر دعا کریں, اور انہوں نے ویسے ہی کیا. اور ایسی کنڈیشن تھی کہ وہ پورا شہر آباد رہا, برباد نہیں ہوا. انہوں نے خداوند کو راضی کیا تھا. جب ہمیں لگتا ہے کہ ہماری راہ سیدھی نہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سیدھے رستے پہ چلیں. تب روزے میں جھک جائیں. روزے میں جھکیں گے آپ کو خداوند راہ بتائے گا. میں دعا کرتی ہوں کہ خداوند تو میری راہوں میں آ جا. جب ہم اس کو بلا لیتے ہیں کہ آپ خداوند میری راہوں میں آ جا, تو وہ خود ہمارے لیے راہ پیدا کر دیتا ہے. ہاللیلویا. اور اگر وہ دعا روزے اور
दुआ की कंडीशन में की जाएगी तो खुदावंद बेपनाह मोहब्बत करने वाला खुदा आपकी राहों में आ जाएगा। अज़रा 8 बाब और उसकी 1 से 2 आयत को आप स्टडी करें, उसमें आप देखेंगे कि किस तरह अज़रा लीडर ने खुदावंद की तरफ अपना रजू किया और खुदावंद उसकी राहों में उसकी मदद की। हालेलुया। खुदावंद से मदद मांगने के लिए, अगर हमारा हेल्पर खुदा नहीं तो हमारा हेल्पर कोई नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आपकी हेल्प खुदावंद करे तो रोजे में ठहर जाए। रोजे की कंडीशन में वो आपके लिए वो मदद भेजेगा जो आप और मैं नहीं जानते। जब चारों तरफ से नाउमीदी होती है तो खुदा आ जाता है। जब ऐसी नाउमीदी हो जिंदगी में, आप चुप करके बैठे हैं, कुछ नहीं होगा, दुआ और रोजे में जुट जाएं, देखें कैसे बड़ा दरवाजा खुलता है। मेरी जिंदगी में खुदावंद ने बड़े बड़े दरवाजे खोले हैं, आपकी जिंदगी में खुदावंद ने बड़े बड़े दरवाजे खोले हैं, क्योंकि जब आपने खुदावंद की तरफ रज्जू किया तो दरवाजे बंद नहीं रह सकते, क्योंकि उन दरवाजों को खोल कर यीशु मसीह आपकी जिंदगी में दाखिल होता है। उसके जलाल के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। रास्तबाज, जब रास्तबाज जिंदगी में चलता है तो कई दफा कठिन रास्ते आते हैं, नाउमीदी के रास्ते आते हैं, मुश्किलात आती हैं। तब रास्तबाज को भी जरूरत होती है कि वो अपनी पावर को कम ना होने दे। कुछ दिनों में बीमार थी तो मैं खुदावंद से कहा, खुदावंद अगर ये मुसीबत आती है आए, ये दुख आता है आए, ये बीमारी आती है आए, क्योंकि तेरी मर्जी है, लेकिन एक काम मेरा भी खुदावंद करता जा, मेरी हिम्मत तू बनता जा, ये सबको फेस तो मैं कर ही लूंगी। हालेलुया। और खुदावंद ने बीमारियों से भी उठा खड़ा कर देता है, दुखों से भी। सिर्फ आपका अपने खुदावंद के साथ जो रिलेशन है वो कैसा होना चाहिए। अगर हालात जैसे भी हो, खुदावंद आपके साथ खड़ा है, आप हालातों की फिक्र ना करें। हालातों ने आते जाते रहना है, लेकिन मसीह अगर आपकी जिंदगी में आ गया तो आप लकी हैं, लेकिन अगर वो चला गया तो यू आर अनलकी। कोई भी नहीं आपके साथ खड़ा होगा, फिर बीमारियां भी घर करेंगी, दुख भी आएंगे और आपको उठाने वाला कोई नहीं होगा। खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ है तो आपकी जिंदगी में सुकून है, पुरसुकून नहीं होंगे। खुदावंद की पनाह हासिल करने के लिए, जब खुदावंद की पनाह हमें मिल जाती है तो हमें किसी की पनाह की जरूरत है। जो हक तला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतली के साया में सुकूनत करेगा। जिसका हाथ खुदावंद ने पकड़ा हो, जिसका शेल्टर खुदावंद हो, क्या उसको डरने की जरूरत है? क्या आप में से कोई है जो कहता है कि खुदावंद मेरा शेल्टर नहीं है? हर कोई चाहता है कि हमारा शेल्टर हो, हमें संभालने वाला, हमें शेल्टर चाहिए, हमें चरवाहा चाहिए। हम वो भेड़े हैं जिनको अभी भी अपने खुदा का हाथ हमेशा चाहिए। इस दौरान अगर कोई ऐसा माहौल बन जाता है कि कोई खौफ, कोई मौत की वादी हमें छूने की कोशिश करती है, तब उसका शेल्टर हमें बचाता है। आपको पता है कि इब्लीस बहुत डरता है, उसको पता होता है कि ये दुआ करने वाला शख्स आज रोजे के वसीले से मुझे डाउन करने वाला है, उसकी जिंदगी में परेशानी आ जाती है। उसे पता चल जाता है कि अगर इस रोजादार ने अभी दुआ के लिए मुंह खोला नहीं, इसके लिए आसमान खोल जाना है, इसके लिए खुदा ने अपने तीरों को भेज देना है, और ये फाइटिंग करने वाला शख्स है, तो आज इसने मुझे फाइट कर देनी है, आज ये मुझे हराने वाला है। और वो शेल्टर जब यीशु मसीह हो तो वो इब्लीस झुकेगा, वो डरेगा, वो मरेगा। और वो तब जब आपके मुंह में कलाम, आपके अंदर रोजा और आपके हाथों में दुआ करने की पूरी कुव्वत होगी। हालेलुया। अब आपके पास हो गए हैं 3 मोती, और मोतियों को जपते रहिए, ये जब तक हार ना बन जाए, खुदावंद का हाथ मत छोड़िए। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो रहा है, आपके साथ मदद कर रहा है। खुदावंद आपको बढ़ाने की पूरी कुदरत है और वो आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो कि खुदावंद हमारे दरमियान में मौजूद है, और खुदावंद हमें बढ़ाता चला जाए। हालेलुया।
खुदा के कलाम में लिखा है कि मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए। जब लैक ऑफ नॉलेज नहीं होता है तो लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगर इस कलाम की हिस्ट्री, इस कलाम की जो स्टडी है हमारी जिंदगी में नहीं तो हम हलाक हो जाएंगे। जब हमें कोई स्टेप्स का नहीं पता होगा, रूटीन का पता नहीं होगा, इन पेजेस का पता नहीं होगा, वर्सेस का पता नहीं होगा, कलाम के अबवाब का पता नहीं होगा, नए और पुराने अहदनामे का पता नहीं होगा, हम इस बाइबल का ही नहीं पता तो हम हलाक हो जाएंगे। हमें अगर वो तरतीब से चीजों को सिखाने की पूरी कुदरत रखता है तो हम सीखते क्यों नहीं? वो हमें सिखाना चाहता है। रोजा का उर्दू में जो वर्ड्स है वो रोजा है, हम उसको उर्दू में बयान करते हैं रोजा। अरबी में इसको सोम कहते हैं, अबरानी में भी इसको सोम कहते हैं, भारत की जबान में इसको भर्त कहते हैं, और यूनानी वर्ड जो है वो नेस्टिया। रोजे के वर्ड्स को मुख्तलिफ जबानों में भी अब तकसीम कर दिया गया है, बताया गया है, इसकी स्टडी दी जा चुकी है। जब खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो वो यहूदियों के आसपास फिर रहे थे, चल फिर रहे थे, रह रहे थे, उनको लोगों ने नहीं पहचाना था। अजीजों, आज मैं और आप जानते हैं यीशु को, हम पहचानते हैं, लेकिन उस कौम ने, उस वक्त के लोगों ने यीशु को नहीं पहचाना। यीशु पे भी सवाल उठा। हमसे भी लोग सवाल करते हैं ना कि इस रोजे के मुतालिक आप क्या जानते हैं? यीशु पे भी सवाल उठा था। यीशु के पास तो सब कुछ था, ये सब कुछ यीशु का ही है, लेकिन यीशु पे भी सवाल उठा। लेकिन यीशु ने जवाब बाइबल से ही दिया था। मत्ती 6 बाब और उसकी 16 आयत में, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह सूरत उदास ना बनाओ। हमें पैटर्न दे दिया है यीशु ने। हमें अब कोई मुश्किल नहीं है कि हम कैसे सीखें। यीशु ने हमें पैटर्न दिया। जब यीशु पे सवाल उठा, यीशु ने पूरा पैटर्न दे दिया। जब शागिर्दों ने कहा कि हमें दुआ नहीं करनी आती, यीशु ने दुआ का पैटर्न दे दिया। जब उन्हें रोजे के बारे में बात की, यीशु ने पैटर्न बताया। आजकल लोग अपने सर में राख मल कर बैठ जाते हैं, उदास और रोने चिल्लाने वाले। लेकिन अजीजों, यीशु मसीह नए अहदनामे में कहते हैं कि जब तुम रोजा रखो, जब जिंदगी में जरूरत है आप रोजा रख सकते हैं। कुछ लोग काले कपड़े पहनते हैं, काले लिबास में बैठते हैं कि ये उदासी और गम का महीना है, लेकिन अजीजों, ये वो महीना है जब हमारी और आपकी तबाही से पहले यीशु मसीह ने एक प्रोसेस किया है, उसने तैयार किया है हम सबको। उसने ईदे क़यामतुल मसीह से पहले ये हमारी तैयारी करवाई है कि हम इस महीने में यीशु मसीह की कुर्बानी को और क़यामत को किस तरह महसूस कर सकते हैं। जब हमने उसको महसूस नहीं किया, उसको देखा नहीं, उसके गमों में शरीक नहीं हुए, तो हम उसकी ईद को, क़यामत को नहीं समझ सकते। तो खुदावन हमें सिखा रहा है कि आप रोजा जब भी रखें, अपनी सूरत उदास नहीं बनाएं, सर में तेल डालें, लेकिन चेहरे पर रौनक हो, किसी को पता भी ना हो कि आप रोजेदार हैं, क्योंकि आपकी शख्सियत ऐसी होनी चाहिए कि उसने सिर्फ हमें शुक्रगुजारी, प्रस्तिश हम के लिए पैदा किया है, तो हमारी जिंदगियों से भी शुक्रगुजारी ही निकलती हो और खुदावंद हमें आगे बढ़ाता चला जाता है। और जब हम खुदावंद के नजदीक होते हैं तो सिर्फ शुक्रगुजारी निकलनी चाहिए। रोजे के मकासद के साथ साथ हम फ्रेश भी रहेंगे, हमारी सेहत की तरक्की होगी, हमारी बॉडी की तरक्की होगी। हम डेली अपनी जो बॉडी को बीमार समझते हैं, जब हम रोजे की कंडीशन में होंगे, खुदावंद आपकी बॉडी को, आपकी नाव की सेहत को, आपकी बॉडी को वो कंट्रोल करेगा और आप फ्रेश रहेंगे। और खुदावंद आसमान से सुनता है, आसमान खोल जाता है। ईद किसे कहते हैं? जब आप खुशी से भर जाते हैं, खुशी से भर जाने को ईद कहते हैं। और अगर वो ऐसी ईद हो जिसमें यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, तो मैं कहूँगी मैं और आप यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की ईद मना रहे हैं। और ये कितना बड़ा वर्ड होगा। और खुदावंद हमारी तैयारी करवाता है। रोजे में मातम नहीं करना, बिल्कुल नहीं।
खुदावन ने कहा है कि आप मातम ना करें, उसके सामने गिड़गिड़ाएं, रोएं, उसके सामने पोशीदगी में, तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है तुझे बदला देगा। वो दिखावा बिल्कुल नहीं करें। खुदावन आपको जब चुन रहा है, अपने काम आपसे ले रहा है, तो आपके चेहरे पर फ्रेशनेस होगी। खुदावन आपके साथ जो रिलेशन बनाता है तो बहुत कंप्लीट बना लेता है। मैं बहुत खुश होती हूँ कि अमाल की किताब में खुदावन ने अपने रसूलों के साथ जो रिलेशन बनाया वो तब रोजे में थे, वो शुक्रगुजारी में थे, क्योंकि रसूल रोजा रखते थे और दुआ करते थे। वो पहली कलीसिया जिसमें बरकत आई, ब्लेसिंग आई। आज खुदावन हमारे भी जिंदगियों में बरकत लाना चाहता है। और आज मैं आपके लिए एक स्पेशल, जब वो योएल बुक में से पढ़ेंगे, योएल नबी का सहीफा उसकी 2 बाब में ये कलाम आप सबके लिए है। इस कलाम के बाद आप अपने कदमों पे खड़े हों। जब मैं इन वर्सेस को पढ़ूंगी तो मेरे अजीजों ये आप रिसीव करेंगे। हालेलुया। अपने कदमों पे सब खड़े हो जाएं। हालेलुया। ये जब आपके अंदर कलाम को बोया जा रहा है तो इसको अपने अंदर आप इनहेल कर लें, इसको फीड कर लें, तो कि खुदावन आज आपसे जो बात करना चाहता है वो कोई भी बात आम नहीं करता। हालेलुया। अब भी पूरे दिल से रोजा रख और गिरियाजारी मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ। खुदावन चाहता है कि आप उसकी तरफ रजू ले आए। इस मंथ में आपको खुदावन ने मौका दिया है। क्या पता ये दिन आज का ही हो आपकी जिंदगी में, ये जब भी आपको मौका मिले उसमें खुदावन चाह रहा है कि तौबा की बुलाहट है। ये अगर आपकी जिंदगी में तौबा नहीं तो ये तौबा की बुलाहट है। खुदावन के कलाम में लिखा है, अब भी पूरे दिल से रोजा रख और गिरियाजारी मातम करते हुए मेरी तरफ रजू ला, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करके खुदावन अपने खुदा की तरफ मतवज्जो हो, क्योंकि वो रहीम मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है और अजाब नाज़िल करने से बाज रहता है। कौन जानता है कि वो बाज रहे और बरकत बाकी छोड़े। जो खुदावन तुम्हारे खुदा के लिए नजर की कुर्बानी और तपावन हो। सयून में नरसिंगा फूंको और रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो। तुम लोगों को जमा करो और जमात को मुकद्दस करो। बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीरखारों को भी फराहम करो। दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने खलवत खाना से निकल आए। काहिन यानी खुदावन के खादम ड्योड़ी और कुर्बानगाह के दरमियान गिरियाजारी करें और कहें, आए खुदावन अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मिरास की तौहीन न होने दे। ऐसा न हो कि दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करें। वो उम्मतों के दरमियान क्यों कहें कि उनका खुदा कहाँ है। उम्मतें क्यों पूछें, गैर कौमें क्यों पूछें आपका खुदावन कहाँ है। मैं समझती हूँ कि खुदावन ने हमें एक लाइफस्टाइल दिया है। हमारा जो मजहब है यीशु मसीह का पैटर्न है, ये एक स्टाइल है। खुदावन ने अपना तरीकेकार हमें दिया है, वो हमें मकासद दे रहा है। हम क्यों पीछे हटें। अजरा, नहमिया, आस्तर, ये भी सब पहले आम से थे। खुदावन ने उनको चुना और वो रोजे में ठहरे। मूसा ने रोजा रखा, एलिया ने रखा। खुदावन यीशु मसीह ने खुद अपने आप को बताया कि रोजा कैसे रखना है। खुदावन के कलाम में हर चीज बयां हो गई है। खुदावन ने सब कुछ बता दिया है। अब वक्त है कि जब आप रोजा रख लेंगे उसके बाद अब खुदावन आपको वो मोती देने वाला है। खुदावन ने आपको रोजे का अजर देना है। कहता है कि तेरी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाएगी।
तेरी रोशनी सुबह की मानित फूट निकलेगी, तेरी सेहत की जल तरक्की जाहिर होगी, तेरी सदाकत तेरा हरावल, खुदा का जलाल तेरा चंडावल होगा, तेरा नूर तारीकी में चमकेगा, तेरी तैरगी दोहराई की मानित खुदावन सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुशबसारी में तुझे सैर करेगा, तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा, तू सैराबे बाग की मानित और उसका चश्मा जिसका पानी कम ना होगा। आमीन, सब कहें आमीन। खुदावन ने वो रोज़ेदारों के लिए अजर रखा है। आलमे बाला पर आवाज सुनी जाए, जब मैं बोलूंगी लाइन आपने उसके बाद आमीन कहना है। हालेलुया। तेरी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाएगी, तेरी रोशनी सुबह की मानित फूट निकलेगी, तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी, तेरी सदाकत तेरी हरावल, खुदावन का जलाल तेरा चंडावल होगा, तेरा नूर तारीकी में चमकेगा, तेरी तैरगी दोपहर को और खुदावन सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुशबसारी में तुझे सैर करेगा, तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा, तू सैराबे बाग की मानित उसका चश्मा जिसका पानी कम ना होगा। ये खुदावन ने आपको ढेर सारे मोती दे दिए हैं, आसमान से हर तरफ चारों गिर्द से वो आपको संभाले हुए है। क्या आप अभी भी अपने आप को आम समझते हैं? क्या आप आम लोग हैं जिनके लिए खुदावन ने इतनी बरकतें नाजिल कर दी हैं, इतने इख्तियारात आपको दे दिए हैं? कब? जब मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं मेरे नाम के तालिब हों। हालेलुया। जब हम उसके तालिब हो जाएंगे, जब हम उसकी आवाज को सुनने वाले बन जाएंगे, तो आसमान हमारे लिए खुलेगा। अपनी नस्लों की फिक्र कीजिए, अपने खानदानों की फिक्र कीजिए, इनको बताएं, सिखाएं कि रोजा हमारी जिंदगी में कितना अहम है। क्या आप सब ने वो मोती रिसीव कर लिए हैं? क्या आप उसका हार बनाने वाले हैं? अपने राइट हैंड को हिलाइए। आपके हाथ में एक पूरा मोतियों से भरा हार है और आप उस हार को लेके जा रही हैं। वो सारी जो खुदावन की ब्लेसिंग्स हैं, वो खुदावन ने जो आपको दी हैं, आज आप उसको अचीव करके जा रही हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको मेरी तरफ से खुदावन यीशु मसीह ने जो बरकतें दी हैं, आपको आज मुबारक हो। खुदावन का हाथ खुला हुआ है आज आपको बचाने के लिए। आपको रिसीव कर चुके हैं, आप फाइटर हैं। अब आप लड़ेंगे, अब आप दुआ होंगे, अब आप रोज़ेदार जाने जाएंगे, अब आप शैतान को हराएंगे, आप उसे फाइट करेंगे दुआ के वसीले से, रोज़े के वसीले से, कलाम के वसीले से। क्या आप फाइटर हैं? क्या आप फाइटर हैं? अपने साथ वाली बहन से कहिए, अब मैं इस रिसीव की हुई माला को पूरी दुनिया में घुमाऊंगी। हालेलुया। पूरी दुनिया में घुमाने के लिए आप रेडी हैं? अपने हाथों को आसमान की तरफ लहरा लीजिए और अपनी माला को खुदावन के हुजूर में रखिए कि थैंक यू गॉड, आज तूने हमें जो पावर दी है, जो माला दी है, जो मोती दिए हैं, आज हमने रिसीव कर लिए हैं और अब हम कामयाब होंगे, हम सेहतमंद रहेंगे, हमारी सेहत जाहिर होगी। तो आगे बाला से वाली दुआ सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद है। आप में से कोई भी खामोश नहीं रहे। खुदावंद आपको जब अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। हर एक ज़बान जो खामोश है अब वो चुप नहीं रहेगी, क्योंकि अब आप हासिल कर चुके हैं, अब आप फाइटर हैं, अब आप सब कुछ हासिल कर चुके हैं। खुदावंद आपको नया कर दिया
के लिए शुक्र हो, तेरे जलाल के लिए शुक्र हो, हालेलुया, तेरे जलाल के लिए शुक्र हो, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपनी ज़ुबान को खोले, खुदावन आज जो तूने मेरी जिंदगी में किया है ऐसा कोई कर नहीं सकता, ऐसा कोई नहीं कर सकता। खुदावन तूने बड़े बड़े काम किए हैं, आज मेरी जिंदगी से वो तमाम जो काम तू नहीं करता खत्म कर। ओ खुदावन तेरा जलाली आसमानी बाप, तेरा नाम हमेशा ऐसे ही इज्जत पाता रहे, क्योंकि तो इज्जत है, तो हमारे लिए बहाली है, तो हमारे बचाने के लिए, हमारे छुड़ाने के लिए अजीम खुदावन दुनिया में आया था और तूने हमारे लिए अपनी जान दे दी थी और खून बहाया था, तेरे सर पर कांटों का ताज रखा गया था। ओ खुदावन तूने कोड़े खाए थे, ओ खुदावन तूने बचा लिया हमें, तेरा बहता हुआ लहू हमारी जिंदगी में उतरा और हम बच गए, बचाए गए, छुड़ाए गए। तूने मौत पर फतह पाई, सारी कब्रों में एक ही कब्र खाली है और वो यीशु तेरी कब्र खाली है। ओ खुदावन तूने अपने आप को साबित किया कि सिर्फ तू ही है, सिर्फ और सिर्फ तू है, सिर्फ खुदावन तू है। तेरी रोशनी और कादर मुतली खुदावन, तेरा कलाम पूरा हुआ, तेरा कलाम पूरा हुआ। हालेलुया। मसीह यीशु नासरी के नाम से जो मांगा वो तूने हमें दिया है और हमें और भी खुदावन तेरी प्रस्तिश, तेरी सताइश करने का और शुक्रगुजारियों का मौका बख्शते हैं। मेरी औलाद रिसीव करने को। आमीन। आप सबने बरकत पाई। आमीन। आप जब भी कलाम सुने, 2-3 जिंदगियां जो भी आपके लिए अपने कलाम सुनाया करें, जो आप सुनते हैं ये आप प्रीच करेंगे और इसमें ब्लेसिंग आपको मिलेगी। मैंने भी सीखा और सुना आप तक, ये हमने एक काम करना है कि जो भी हम सीखते हैं, हमारे साथ जो करीबी बहन भाई जो भी हमारे करीब होते हैं और वो चर्च में नहीं आते, आप उन्हें सुनाएं, वर्ड्स मैसेज करें, व्हाट्सएप पे भेज दें, उनको वैसे आप सुनाएं। ये प्रीच करने का जो काम है ये सिर्फ बड़ों का नहीं है। खुदा ने कहा है कि बड़े बच्चे, शीरखार बच्चे, सबको खुदावन ने ये मौका दिया हुआ है और जब भी आपके पास ये रिसीव हो, इसको आपने स्प्रेड करना है। ये एक्चुअली आपकी असल ब्लेसिंग तब होगी। खुदावन आपको बरकत दे। आमीन। अपनी माला को लहराइए, क्योंकि खुदावन चाहता है कि आज आप हैप्पी होके जाएं, खुश होके जाएं। महीना खुशी का है, क्योंकि हमारी निजात का बंदोबस्त हुआ। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आमीन।